Hello, students. I hope you all are studying well. So, today I'm going to discuss about a chapter of your English grammar that is sentences. So, what do you mean by sentences? A group of words that makes complete sense is called a sentence. Words किससे बनते हैं? Letters से. What do you mean by letters? Like A, B, C, D. There are 26 alphabets. That is called letters. Letters से words बनते हैं. Words से sentence बनते हैं. और कोई भी group of words doesn't mean that is a sentence. A group of word that makes a complete sense. Complete sense मतलब जिसका कोई मतलब हो. That is called a sentence. Like for example, I've taken Jack and Jill went up the hill. So this is the complete sentence, and that is making us a sense. So if I will say that went up the hill Jack and Jill, that is not a that is a sentence, but that does not give us any kind of meaning to it. So Jack and Jill went up the hill. तो सेंटेंस जो है वो दैट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. लाइक द सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल. वो एक स्मार्ट लड़की है. तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को सेंटेंस बनाते वक्त सोचना चाहिए? सो फर्स्ट वन इज़ words in a sentence should always be placed in a proper order. Second one, it should always begin with a capital letter. So whenever you'll write a sentence, it should always begin, the first letter, the first word of that letter will be in capital. And the third one is, it should always end with a full stop, question mark and exclamation mark. तो ये तीन चीज़ें ही होती हैं. या तो फुल स्टॉप से एंड होगा अ सेंटेंस, या तो फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. Got it? Now we'll discuss what are the kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. The first one is declarative, second is interrogative, third is exclamatory, and fourth is imperative. So let's discuss what is declarative. Declarative is a kind of sentence which states or declares something. जैसे नॉर्मल सेंटेंस होता है, दैट आई एम गोइंग टू स्कूल. दैट इज़ आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, आप कुछ स्टेट कर रहे हो, कुछ बता रहे हो. दैट इज़ द चिल्ड्रन आर, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. इट्स अ वेरी नॉर्मल सेंटेंस. सो it is also known as, the declarative sentences are also known as statement. जहाँ आप कुछ डिक्लेयर करते हो, कुछ बताते हो. तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और हमेशा एट द एंड यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप ओवर देयर. नाउ द सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरोगेटिव सेंटेंस? दोज वेयर वी आस्क क्वेश्चंस. उन सेंटेंसेस जहाँ हम लोग सवाल पूछते हैं, दैट इज इंटरोगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर. तो जब भी हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, दैट कम्स अंडर इंटरोगेटिव सेंटेंस. गॉट इट? And you will always put a question mark at the end in interrogative sentence. Otherwise, teacher is going to deduct marks. Now the third one is exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? Where we express strong or sudden feeling or emotion. जहाँ हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर अचानक से कोई फीलिंग आती है या इमोशन आता है, दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल दिस फ्लावर इज़. सो दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी. अचानक से हम लोग फूल देखे और कहते हैं वाह कितना सुंदर है. सो दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी. Fourth one, imperative sentence. What is imperative sentence? Those that is used to express a command, a request, or a desire.
So there's a imperative और डिक्लेरेटिव में एक चीज़ कॉमन है दैट इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. लेकिन इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव में डिफरेंस क्या है कि डिक्लेरेटिव इज़ वेयर वी डिक्लेयर और स्टेट समथिंग एंड इन इम्परेटिव वेयर वी कमांड और रिक्वेस्ट और डिज़ायर. हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं दैट इज़ इम्परेटिव. फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, प्लीज़ कम इन. तो सिट डाउन क्या है, बैठ जाइए. तो ये हम लोग कमांड कर रहे हैं. प्लीज़ अंदर आ जाइए, दैट इज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं. दैट ऑल कम्स अंडर इम्परेटिव. लाइक कीप क्वाइट. Here I am going to tell you that it is out of your chapter, but usually people say that keep quiet. But यहाँ पे quiet मतलब होता है small. You should always say keep quiet. Okay? Now the fourth one is take your medicine regularly. So this is a kind of advice you are giving. So that also comes under imperative. Okay? Now I'll tell you about phrases. Like these are the four examples I've taken. Like in the morning, at the station, in the east, at the corner. आप लोग बोलोगे कि मैम ये भी तो एक सेंटेंस है, फिर आप इसको क्यों फ्रेजेस कह रहे हो, नॉट अ सेंटेंस? बिकॉज दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर मीनिंगफुल. ये इनका भी कुछ मीनिंग है. इन द मॉर्निंग, सुबह में, बट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं है. तो जब भी शब्दों का मतलब हो लेकिन पूरा स्टेटमेंट ना हो, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रेज. सो लाइक हियर, इन द मॉर्निंग, सुबह में. क्या सुबह में? सो like I've taken the example also, she goes for a walk in the morning. So that is the complete sentence. That makes a complete sense कि वो वॉक पे जाती है in the morning, सुबह में. At the station, क्या स्टेशन पे? कुछ भी नहीं पता है. There's nothing. So that will be termed as phrases. श्याम मेट मी एट द स्टेशन. तो स्टेशन पे क्या हुआ कि मेरे को श्याम मिला था. तो दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है. समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर और एट द कॉर्नर. सो फ्रेजेस क्या होते हैं जिनका मीनिंग तो होता है पर कंप्लीट मतलब नहीं होता है. So that is known as phrases. Now let's discuss about parts of a sentence. So there are two parts of a sentence. The first one is subject and the second one is predicate. So what is subject? जिसके बारे में, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा है, that is the subject. और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है, दैट इज़ द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी होता है सेंटेंस में, दैट इज़ द प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी व्हाट इज सब्जेक्ट. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन और द थिंग whom something is said. जिसके बारे में बता रहा, किसी आदमी का नाम है, किसी चीज़ के बारे में हम लोगों को पता चल रहा है, दैट इज़ द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या है? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सेंटेंस. वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो कि हम लोग को क्या बताता है, उस सेंटेंस के बारे में बता रहा है. तो दैट इज़ द प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ गोइंग टू द स्कूल. तो किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में. तो राम इज़ द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट इज़ द प्रेडिकेट. राम के बारे इज़ गोइंग टू द स्कूल, स्कूल जा रहा है. तो राम इज़ द सब्जेक्ट एंड इज़ गोइंग टू द स्कूल इज़ द predicate. And there are some features of a sentence. Let's see. What is it? The subject is usually placed before the predicate, but sometimes the order is changed.
तो सब्जेक्ट जो है वो यूजुअली मीन्स कभी कभी जो है सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेडिकेट पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आया. Now let's take some examples. Then you will be able to understand it very well. For example, the first one is the children enjoyed the movie. So किसके बारे में बात हो रहा है? चिल्ड्रंस के बारे में. चिल्ड्रन जो है वो मूवी enjoy किए. तो द चिल्ड्रन आर इज द सब्जेक्ट. चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है एंड द रेस्ट इज द प्रेडिकेट. लाइक enjoyed द मूवी, वो सब्जेक्ट के बारे में जो भी सेंटेंस में बताता है दैट इज द प्रेडिकेट. नाउ द सेकेंड वन इज राहुल पास द एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स. सो किसके बारे में बात हो रहा है सेंटेंस में? दैट इज अबाउट राहुल. सो राहुल इज द सब्जेक्ट, और राहुल के बारे में जो भी बात हो रहा है दैट विल बी द प्रेडिकेट. गॉट इट? नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल. हियर आई विल टेल यू कि मैंने वहाँ यूजुअली क्यों लिखा है. द लेटर केम आफ्टर अ फ्यू डेज. तो क्या आया? लेटर के बारे में बात हो रहा है, तो लेटर इज द सब्जेक्ट एंड केम आफ्टर अ फ्यू डेज. उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है कि कुछ दिन बाद आया, तो दैट विल बी टेकन एज अ प्रेडिकेट. लाइक हियर I've just rearranged the sentence that after few days came the letter. So यहाँ पे प्रेडिकेट पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में. ऐसा कभी नहीं होता है कि हमेशा सब्जेक्ट ही पहले होगा और प्रेडिकेट बाद में होता है. कभी कभी ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रेडिकेट पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है. लाइक हियर आफ्टर फ्यू डेज केम द लेटर. तो द लेटर इज द सब्जेक्ट एंड आफ्टर फ्यू डेज केम इज द predicate. Got it? I hope you are understanding all these. Now let's see the second feature. In imperative sentence, the subject is always you. Imperative sentence क्या था? I hope you all remember it. तो imperative sentence था कि that expresses a कमांड, जिसमें हम किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या अपना डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर अपना एडवाइस दे रहे हैं किसी को, तो दैट इज़ इम्परेटिव सेंटेंसेस. तो इम्परेटिव सेंटेंस में आप हमेशा देखोगे कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा यू होता है, जो कि कभी मेंशन नहीं होता है सेंटेंस में, बट इट इज़ इम्प्लाइड. वो हमेशा हिडन होता है, जो आप देख नहीं पाओगे, बट वहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट जो है वो यू होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल गो देयर. अगर मैं आपको देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ गो देयर, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू. सो यू गो देयर, तो यू इज़ हिडन ओवर हेयर. सो हेयर इन दिस सेंटेंस यू इज़ द सब्जेक्ट एंड गो देयर इज़ द predicate. Like the second one, take medicine on time. So मैं आपको देख के बोल रही हूँ टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो दैट मीन्स यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम. सो यू इज़ द सब्जेक्ट एंड टेक मेडिसिन ऑन टाइम इज़ द predicate. Now like the third one, come here. What is come here? You come here. We always say that. So you is the subject and come here is the predicate. So usually in imperative sentences, the subject is you, which is not mentioned but is hidden. Got it? Now the third feature. It's a very important feature, क्योंकि आप जब भी कोई भी सेंटेंस फ्रेम करोगे, you'll always see this. Every predicate has at least one verb. हर predicate का एक verb ज़रूर होता है. And verb changes according to the number of subject. जैसा subject होगा वैसा ही उसका verb होगा. Like for example, you won't be understand like this. Let's take few examples. For example, the first one, the girl is sitting on the chair. Girl जो है वो subject है. As you all know, the girl is
गर्ल के बारे में बात हो रहा है, तो दैट इज़ द सब्जेक्ट। और गर्ल क्या है? सिंगुलर है, एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो वर्ब क्या होगा उसका? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या है? इज़। सो द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। लाइक द सेकेंड वन, गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द चेयर। सो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रहा था, एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल कई लड़कियों के बारे में बात हो रहा है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी चेंज होगा। तो गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द चेयर। तो अगर गर्ल्स जो है वो सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा तो क्या होगा? आर। गॉट इट? नाउ द थर्ड वन, जॉन इज गोइंग टू द पार्टी। तो जॉन इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। जॉन के बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है वो उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो जॉन इज गोइंग टू द पार्टी। तो जॉन इज अ सब्जेक्ट, जॉन सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, तो दैट विल बी is, was, whatever you can take. Got it? So this was the end of the chapter. I hope you all have understood the chapter, and thank you so much.